پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہماری پہلی کہانی ایمان اور بہادری کے بارے میں ہے۔ ایک خاموش پہاڑی گاؤں میں جہاں رات کو ستارے لالٹینوں کی طرح جگمگاتے تھے، ایک دیو قامت درخت کھڑا تھا، پہاڑوں سے بھی پرانا، چھتوں سے بھی اونچا، مگر سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی اس کے نیچے بیٹھنے کی جرت نہ کرتا۔ بچوں میں سرگوشیاں ہوتی کہ اس کی جڑوں پر جن پہرا دیتے ہیں۔ گاؤں والے گزرتے تو خاموشی اختیار کرتے، مگر دو تجسس بھرے بہن بھائی یوسف 12 سال اور حفصہ 8 سال جلد ہی اس کی وجہ جاننے والے تھے۔ بھائی، سب لوگ اس درخت سے کیوں کتراتے ہیں؟ یہ تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ بس بچوں کو ڈرانے والی کہانی ہے۔ آج رات ہم ثابت کریں گے کہ یہ محض ایک درخت ہے۔ عشاء کے بعد وہاں بیٹھیں گے۔ یوں ہی جب گاؤں کے چراغ جل اٹھے اور رات کی ہوا سیٹی بجانے لگی، دونوں بہن بھائی دبے قدموں نکلے۔ ان کے قدموں کی چاپ سنسان راستے پر گونجی جو اس دیو قامت درخت تک جا رہی تھی۔ درخت ان پر جھکا ہوا تھا، شاخیں دیو کے بازوؤں کی مانند مڑی ہوئی، پتے سرسرا رہے تھے، حالانکہ ہوا بالکل ساکت تھی۔ وہ اس کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پہلے پہل خاموشی رہی، لیکن پھر فضا بوجھل ہونے لگی۔ پاس بہتا نالا عجیب سرگوشیوں جیسی آوازیں نکالنے لگا۔ درخت کی چھال پہ ایک سیاہ سایہ رینگا، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ حفصہ ڈری ہوئی سرگوشی، بھائی تم نے یہ سنا؟ یوسف پریشان، خاموش رہو، یہ بس ہوا ہے نا؟ اچانک چر چر جڑیں کانپ اٹھیں، زمین پھٹنے لگی، تنے کے اندر سے 2 دہکتی آنکھیں ابھریں، ہوا میں دھاڑ گونجی۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، نکل جاؤ۔ شاخیں پنجوں کی طرح جھک کر ان کا راستہ روکنے لگیں۔ حفصہ نے یوسف کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، سائے مڑ کر لمبی ڈراؤنی شکلوں میں بدلنے لگے۔ حفصہ روتے ہوئے، یوسف ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یوسف لرزتی آواز، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر نکلیں کیسے؟ خوف نے ان کے دل جکڑ لیے، لیکن یوسف کو اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، جب خوف تمہیں گھیر لے تو اللہ کو پکارو۔ یوسف زور سے، بہادری سے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا اور حفصہ بھی شامل ہو گئی۔ دونوں نے مل کر آذان بلند کی، ان کی آواز پوری وادی میں گونج اٹھی۔ وہ دہکتی آنکھیں بجھنے لگیں، سیاہ شکلیں پگھلتی ہوئی درخت میں واپس سمٹ گئیں، شاخیں شکستہ بازوؤں کی طرح اوپر اٹھ گئیں۔ لمحوں میں سب خاموش، درخت پھر سے ساکت درخت بن گیا۔ یوسف اور حفصہ گھر کی طرف دوڑے، دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، مگر دل مطمئن تھے۔ گاؤں والے جمع ہوئے تو حیران رہ گئے۔ بزرگوں نے سر ہلایا، بے شک آذان شیطان کو بھگا دیتی ہے، تم بچوں نے آج ایمان اور بہادری دکھائی۔ حفصہ مسکراتے ہوئے، یہ ہماری ہمت نہیں تھی، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ یوں یہ درخت پورے گاؤں کے لیے سبق بن گیا۔ سائے ڈرا سکتے ہیں، مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ پیارے بچوں، جب خوف تمہیں گھیر لے تو اللہ کو یاد کرو، اس کے کلام کی تلاوت کرو، اور تم کبھی اکیلے نہ رہو گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی جنات سے اللہ کی پناہ مانگنے کے بارے میں ہے۔ ایک طویل صحرائی سفر میں زکی اور اس کا خاندان ایک عجیب و غریب جنگل میں بھٹک گیا۔ درخت برجوں کی طرح اونچے تھے، ان کے چاندی جیسے پتے ہلکی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ رات ڈھلتے ہی انہوں نے ایک پرانے پھیلے ہوئے درخت کے نیچے آگ جلائی، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ یہ جنگل انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ جو صرف 10 سال کی تھی، اپنی دادی اور ماں کے بیچ میں سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ اس کا 8 سالہ بھائی ساجد دادی اور والد کے درمیان بیٹھا تھا۔ خاندان تھکا ہوا تھا، مگر دل بے چین تھے، جیسے سائے خود حرکت کر رہے ہوں۔ دھن سے 3 اجنبی نمودار ہوئے، 2 مرد، ایک کی لمبی ٹیڑھی تاڑی، دوسرا قداور چپتی ہوئی آنکھوں والا۔ ان کے بیچ ایک 12 سالہ کمزور لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت بڑی لگ رہی تھی۔ کیا حال ہے مسافروں؟ سب سے لمبے نے کہا۔ اس کی آواز کھوکھلی سی تھی۔ زکی نے حکمت و وقار سے جواب دیا،
मगर आलिया की आंखें फैल गईं। दरअसल उनके लड़के के पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। अजनबी आग के पास बैठ गए और अजीब सवाल करने लगे कि तुम रात को क्यों सफ़र करते हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? उनके अल्फाज सांपों की तरह सरकते हुए निकल रहे थे। आग की लपटें नीली हो गईं और साए लंबे होकर दरख्त पर पंजों की तरह फैल गए। अचानक दोनों मर्द लंबे होने लगे, हड्डियां चरचराने लगीं, आज़ा खिंचने लगे। उनकी मुस्कुराहटें और चौड़ी हो गईं, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख चलने लगीं। लड़के की आवाज़ चीख में बदल गई जब उसका जिस्म स्याह धुएं में पिघलने लगा, जो मुड़कर एक देव हैकल जिन की सूरत इख्तियार कर गया। आँख की रोशनी में उनका असल रूप सामने आया। ये भेस बदले हुए जिन थे। वो देव कामत जिन खानदान पर झुक गए, पंजे बढ़ाते हुए। आदम ने बच्चों को ढांपा मगर उसकी आवाज़ कांप रही थी। समिया लोती रही साजिद को चिमटाए हुए, मगर बूढ़े ज़की खड़े हो गए। उनकी आवाज़ ईमान से गूंज उठी जब उन्होंने तिलावत शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी की बाज़ गश्त जंगल में गूंजी। हानिया ने भी साथ दिया, सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत करते हुए। जिन अपने कानों को पकड़ने लगे, दहाड़ते हुए पीछे हटने लगे। कुरान की रोशनी ने उनके साए जला डाले। आग सुनहरी हो उठी, रेत बगोले की तरह घूमने लगी और एक आखिरी चीख के साथ वो देव धुएं में बिखर कर गायब हो गए। सन्नाटा छा गया, चांद और रोशन हो गया, जंगल सुकून से भर गया। इस रात आलिया और साजिद ने सीखा, चाहे दुश्मन कितना ही मजबूत और खौफनाक क्यों ना हो, अल्लाह का कलाम सबसे बेहतरीन हिफाजत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक शैतान की चाल कमज़ोर है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी बुजुर्गों के एहतराम पर है। एक पोशीदा वादी में जहाँ पहाड़ बादलों को छूते थे, एक जादुई गांव आबाद था। चमकते नीले चश्मे, कौसे कुज़ा जैसी तितलियां और रोशनी से खिलते हुए दरख्त। यहाँ बच्चे घोड़ों पर नहीं बल्कि परों वाली बकरियों पर उड़ते थे, चमकती जीने और आंखों पर पट्टी नुमा चश्मे लगाए हुए। इन बच्चों में 2 बहन भाई थे, 10 साला हादी और उसकी 8 साला बहन रायका। हवा से भी तेज, शाहीनों से भी बहादुर, वो हर सुबह अपनी परों वाली बकरियों पर आसमान को चीरते हुए उड़ते। एक रोशन सुबह वादी ने बड़े फजाई मुकाबले की तैयारी की। खुशनुमा दरख्तों से लालटीनें झूल रही थीं, रंग बरंगे परिंदे गुनगुना रहे थे और गांव का बुजुर्ग माली, सफ़ेद दाढ़ी वाला नेकदिल आदमी, चमकते फूलों को पानी देते हुए मुस्कुराकर बच्चों को देख रहा था। हादी और रायका उसके करीब से तेज हवा की तरह गुजरे, इतनी तेजी से कि ना रुक सके, न मुस्कुराए, न सलाम किया। बुजुर्ग ने खामोशी से सर झुका लिया। चश्मे का पानी लम्हे भर के लिए मध्यम हो गया और जैसे ही दौड़ शुरू हुई, एक अजीब वाक़या पेश आया। हादी अपनी बकरी पर झुक गया, जीतने के लिए तैयार, लेकिन अचानक बकरी के परों में लर्जिश आ गई। बकरी हवा में डोलने लगी। रायका की बकरी मजबूती से उड़ती रही, मगर हादी की गोया किसी अनदेखे बोझ से झंझला रही थी। हादी घबराकर, ये क्या हो रहा है? मेरी बकरी ने कभी ऐसा नहीं किया। जैसे ही हादी ने तवाजुन संभालने की कोशिश की, बकरियां चश्मे की तरफ झुकने लगीं। पानी चमका और उसमें से उभरती हुई शक्लें बनने लगीं। चमकती मछलियां उछलकर गोया सरगोशी करने लगीं। बुजुर्गों का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हारी राहों को बरकत देगा। हादी और रायका घास के बागीचे में उतरे, हैरान परेशान। रायका की आंखें फैल गईं। भाई, हम बुजुर्ग के पास से सलाम किए बगैर गुजर गए, शायद इसीलिए तुम्हारी बकरी के पर कमजोर हो गए। हादी का दिल बैठ गया। वो जानता था कि रायका ठीक कह रही है। दोनों तितलियों और परिंदों से बचते हुए मैदानी बागीचे से भागते हुए निकले और आखिरकार रोशन दरख्तों के पास बुजुर्ग को ढूंढ लिया। हादी आजिज़ी से और शर्मिंदा होकर, अस्सलामुअलैकुम दादा जान, हमने सलाम और अदब के बगैर गुजरने की गलती की, हमें माफ़ फरमा दें। बुजुर्ग ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ हादी के कंधे पर हाथ रखा। फूल और ज्यादा जगमगाने लगे और चश्मे फिर से चमकने लगे। उनके ऊपर बकरियां अपने पर फैलाते हुए और ज्यादा रोशन हो गईं। नए जोर के साथ बकरियां पहले से कहीं ऊंचा उड़ी। हादी और रायका सुनहरे दरख्तों और सब्ज व शादाब वादियों से गुजरे। हंसी की गूंज फिजाओं में बिखर गई। इस बार वो जीतने के लिए नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के साथ उड़ रहे थे, नीचे गांव के लोगों को सलाम करते हुए। पूरा गांव देख रहा था, तालियां बजा रहा था
जब बहन भाई वापस बुजुर्ग के पास उतरे तो वो जान चुके थे कि असल ताकत रफ्तार में नहीं बल्कि उन बरकतों में है जो अदब से हासिल होती है। और उस दिन के बाद हादी और रायका ने कभी ना भूला, बुजुर्गों का एहतराम दिल को रोशनी देता है, रूह को ताकत बख्शता है और हर रास्ते को बरकतों से मुनव्वर करता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो, हर सलाम, हर मुस्कुराहट, हर अदब में अल्लाह की रहमत की कुंजी छुपी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी असातिज़ा की इज्जत पर है। रौनकों से भरी नूराबाद की बस्ती में स्कूल का स्टेज रोशनियों और रंगों से जगमगा रहा था। आज थी बड़ी परफॉर्मेंस की रात। समी, जो क्लास का सबसे शोख बच्चा था, कॉमेडी स्टार बनने को तैयार था, मगर उसे क्या खबर कि उसका सबसे बड़ा मजाक उसकी सबसे डरावनी रात में बदलने वाला है। समी सबका पसंदीदा था क्योंकि वो सबको हंसाता था, मगर कभी-कभी हद से ज्यादा। जब उस्ताद उस सुबह कुरान पढ़ा रहे थे, समी ने छुपकर उनकी आवाज की नकल उतारी, क़ा, क़ाफ, नून, और क्लास हंसने लगी। उस्ताद ने सब्र से उसकी तरफ देखा। उस्ताद, समी, उस्ताद का मजाक बनाना इल्म का मजाक बनाने के बराबर है, खबरदार रहो। मगर सामी और जोर से हंसा। फिक्र न करें उस्ताद, आज रात मैं तो फिर भी स्टार बनूंगा। दोस्त हंस पड़े, मगर उस्ताद की आंखों में एक खामोश वार्निंग थी। शाम हुई, हॉल तमाशाइयों से भरा हुआ था। वालिदैन तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। समी ने फख्र से अपनी कॉस्ट्यूम पहनी, अपनी बारी का इंतजार करने लगा। पर्दा उठा, मौसीकी बजी और समी की बारी आई। उसने मुंह खोला और अपनी पहली लाइन जोर से बोली, लेकिन खामोशी, कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि सरगोशी भी नहीं। तमाशाई हैरत से पलक झपकने लगे। समी ने फिर कोशिश की, इस बार और जोर से, मगर होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक स्टेज पर सरगोशियां गूंजने लगीं। उस्ताद का एहतराम करो, उस्ताद का एहतराम करो। स्पॉटलाइट लर्जने लगा, दीवारों पर लंबे साये पड़ने लगे। समी के गले पर बोझ सा महसूस हुआ, जैसे कोई पोशीदा हाथ उसके अल्फाज को दबा रहा हो। माइक चीखा, सिस सिस सिस, कक कक, और सरगोशियां और बुलंद हो गईं। समी घबरा गया, वो स्टेज से भागा, मगर सरगोशियां उसके पीछे। इल्म नूर है, मजाक उड़ाओगे तो नूर चला जाएगा। दोस्त हाँफते हुए बोले, समी ये क्या हो रहा है? मगर समी कुछ न कह सका, उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। डरा सहमा समी आंसू बहाते हुए उस्ताद के घर की तरफ भागा। गले की तरफ इशारा किया, बोलने की कोशिश की, मगर सिर्फ सांस निकल रही थी। उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, उस्ताद, समी, इल्म एक अमानत है। जब तुमने उस्ताद का मजाक बनाया, तुमने अल्लाह की नेमत का मजाक बनाया। अब हकीकत समझ में आई। समी ने तेजी से सर हिलाया, आंखें खौफ से बड़ी हुईं। उस्ताद ने कुरान की तिलावत शुरू की। अल्फाज सुकून की रोशनी से जगमगा उठे। आहिस्ता आहिस्ता समी ने अपने गले में गर्मी महसूस की। उसने पहली बार हल्की आवाज में कहा, मैं माफी चाहता हूँ। उस्ताद मुस्कुराए। उस्ताद, तौबा और तब्दीली यही मोमिन की राह है। अगले दिन क्लास में समी सबके सामने आजिज़ी से खड़ा हुआ। उसने उस्ताद और दोस्तों से माफ़ी मांगी। इस दिन के बाद समी बेहतरीन सुनने वाला बन गया, अपने उस्ताद की इज्जत करने लगा और हकीकतन एक स्टार बन गया, स्टेज पर नहीं बल्कि इल्म की रोशनी में। बच्चों, याद रखो, हमारे उस्ताद इल्म के दरवाजे हैं। अगर हम उनका मजाक उड़ाएं तो ये दरवाजे खुद हम पर बंद हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों का एहतराम न करे और उलमा का हक अदा न करे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने असातिज़ा का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इल्म के नूर से नवाजेगा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी फिर से अल्लाह पर ईमान के बारे में है। एक खामोश यूरोपीय कस्बे में, जहां पहाड़ आसमान को छूते और नदियों के नीचे पथरीले पुल जगमगाते, एक तूफान आने वाला था जो दो बहादुर जुड़वा भाइयों बाकिर और आबिद के ईमान को आजमाने वाला था।
बाहर के अजीम मेले की सुबह आ गई। गलियां रंग बरंगे बैनर से सजी थीं, दुकानें मिठाइयों से जगमगा रही थीं और बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। बाकिर और आबिद कलाबाजियां खाते पथरीली सड़क पर दौड़ रहे थे कि अचानक स्याह बादल छा गए। बारिश मूसलाधार बरसने लगी। कस्बे के पुल के नीचे दरिया ऐसे गरजा जैसे कोई देव जाग उठा हो। गांव वाला चिल्लाकर, पुल टूट रहा है, सब पीछे हटो। और एक खौफनाक धमाके के साथ आधा पुल शोर मचाते पानी में गिर गया। मेले तक जाने का वाहिद रास्ता खत्म हो चुका था। कस्बे में खौफ फैल गया। बच्चे रोने लगे, दुकानदार रंगीन सामान समेटने लगे। एक बूढ़ा आदमी ठंडी सांस भरकर बोला, मेला खत्म हो गया, इस तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। आबिद, नहीं, अल्लाह ताला हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते, हमें बस उनकी पाक ज़ात पर भरोसा करना है। बाकिर इस बात में सर हिलाकर, हाँ, शायद ये आजमाइश है, ये देखने के लिए कि हम हिम्मत हारते हैं या डटे रहते हैं। लेकिन लोग सर झुकाने लगे। वो बड़बड़ाए, 2 छोटे लड़के टूटा हुआ पुल नहीं बना सकते। उसी रात जब बारिश थमी, दोनों भाई जाए नमाज पर झुक गए, धीरे से दुआ करते हुए, या अल्लाह हमें रास्ता दिखाएं। बाहर खुरचने और छपछपाक की आवाज़। उन्होंने खिड़की खोली और दंग रह गए। चांदनी में उन्होंने बीवर्स के एक खानदान को देखा। वो मेहनती, चालाक, एक दूसरे के साथ मिलकर शाखें घसीट रहे थे, लकड़ियां बुन रहे थे, दरिया के किनारे को संवार रहे थे। आबिद हैरत से, सुभान अल्लाह, जानवर भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। बाकिर पुरज़्म, कल हम गांव वालों को बुलाएंगे, हम दिखाएंगे कि ईमान और इत्तेहाद क्या कर सकता है। अगली सुबह जुड़वा भाई परेशान गांव वालों के सामने खड़े हुए। आंखों में चमक लिए उन्होंने पुकारा, हौसला मत हारो, अल्लाह पर भरोसा करो और मिलकर रास्ता बनाते हैं। बच्चे रस्सियां लाएं, औरतें तख्ते लाएं, मर्दों ने मजबूत शाखें काटी। सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, बिल्कुल बीवर्स की तरह। हर गिरह बांधने, हर तख्ता रखने के साथ ईमान बढ़ता गया। आसमान पर कौसे क़ज़ा छा गई और आहिस्ता आहिस्ता एक नया रास्ता शोर मचाते दरिया पर फैल गया। ग़रूब आफ़ताब तक मेले का मैदान दोबारा महफूज हो गया। नया पुल मजबूती से खड़ा था, हिम्मत और इत्तेहाद की अलामत। ख़ानदान मुस्कुराते हुए पार गए। फिर कस्बे के चौक में सब जमा हुए, मर्द, औरतें और बच्चे। इमाम ने हाथ उठाकर कहा, आओ हम मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें इस आजमाइश से गुजारा। गांव वाले सफ पस्ता खड़े हुए, सब ने मिलकर हाथ उठाए और दुआ की आवाज़ पहाड़ों तक गूंजी। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तूफान खत्म हो गया था, लेकिन एक बड़ी तब्दीली बाकी रही, ईमान, इत्तेहाद और शुक्रगुजारी। यूं बहार का मेला एक आम जश्न से बढ़कर याददानी बन गया। जब आजमाइशें आएं तो घबराओ नहीं, दुआ करो, अल्लाह पर भरोसा करो और मुत्तहिद रहो, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा करीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी आखिरी कहानी सच्चाई और इंसाफ पर मबनी है। सुनहरी सहरा के दिल में, जहाँ कालीन बाजारों के ऊपर उड़ते और मसाले जवाहरात से भी ज्यादा चमकते थे, वहाँ एक 10 साला लड़का रहता था जिसका नाम था रज़ा। वो ईमानदार और खुशमिजाज था, मगर इसी नखलिस्तान में एक लालची सौदागर भी रहता था जिसका नाम था लालू। उसके ठेले के नीचे छुपी थी एक खुफिया चाल, एक टेढ़ी तराजू। हर रोज मुसाफिर अपने ऊँटों पर खजूर, शहद और रेशम लेकर आते, लेकिन जब वो लालू के ठेले पर तोलते, ओह, उसकी टेढ़ी तराजू उनका हिस्सा कम कर देती, जबकि लालू का सोने का संदूक दिन ब दिन मोटा होता जाता। लालू, हाँ, मेरे लिए ज्यादा, उनके लिए कम। एक दिन रोशन सुबह में नन्हे रज़ा ने अपना ठेला लगाया। उसके पास बस चंद खजूरें, एक वफादार ऊंट और एक चमकती ईमानदार तराजू थी जो उसके मरहूम वालिद ने उसे दी थी।
मगर जब उसने देखा कि बच्चे लालू के ठेले से भूखे लौट रहे हैं और प्यासे ऊँटों को भी इंसाफ का पानी नहीं दिया जा रहा, तो रज़ा ने मुट्ठियाँ भींच लीं। ये इंसाफ नहीं था। उस रात जब फानूस जलमलाए और कालीन चांदनी में उड़ रहे थे, रज़ा ने अपने ऊँट के कान में कहा, कल हम सच दिखाएंगे। ऊँट ने नाक सुड़की जैसे वो बात समझ गया हो। अगली सुबह रज़ा बाजार के बीच खड़ा हुआ। उसने अपनी ईमानदार तराजू चौक में रखी और पुकारा, ऐ नखलिस्तान के लोगों, आज आओ हम इंसाफ के साथ तोल करें। मुसाफिर कतारों में खड़े हो गए। एक एक करके सब ने रज़ा की तराजू पर तौल किया। खजूरें ठीक तौलीं, शहद दुरुस्त मापा गया। बाजार हैरत भरी सांसों से गूंज उठा। रज़ा की तराजू बिल्कुल पाकीज़ा और आदिल थी। लालू का चेहरा अनार से भी ज्यादा लाल हो गया। वो गर्राया, नहीं, मेरी तराजू बिल्कुल दुरुस्त है, यही झूठा है। उसने अपनी टेढ़ी तराजू आगे घसीटी, मगर जब दोनों तराजू एक साथ आजमाए गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और लालू का फरेब बेनकाब गया। उसके बाट खोखले थे। हुजूम हक्का बक्का रह गया। ऊंट गजब से दहाड़े और कालीन उसके सर के ऊपर गुस्से में घूमने लगे। लालू अपना सोना लेकर भागने लगा, मगर सहरा ही उसके खिलाफ हो गया। रेत के बगोले उठे, उसका संदूक उलट गया और सिक्के बारिश की तरह बाजार में बिखर गए। लोग खुशी से चिल्ला उठे और अपना हक वापस ले लिया। जहाँ तक रज़ा का ताल्लुक है, उसकी ईमानदारी ने पूरे बाजार को रोशन कर दिया। ताजिर उसे दुआएं देने लगे, बच्चे उससे लिपट गए और बाजार का अजीम फानूस उस रात पहले से ज्यादा चमकने लगा। यूं बच्चों, रज़ा ने सबको सिखा दिया कि इंसाफ जिंदगी की रोशनी है, जबकि लालच सिर्फ रुसवाई लाता है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदल करो क्योंकि अदल तुम्हें तकवा के करीब कर देता है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।